Hello, my dear little shining stars. Welcome back to your EVS class. Students, myself Shama Parveen and I am your EVS teacher. So today onwards, you all are going to see your book 3 of EVS with me. Okay? And in our today's class, first of all, we all are going to see our chapter number 1. I hope you all are really very excited to start this chapter with me. Okay? So the name of this chapter is Wonderful Family. Students, in this chapter number 1, we all are going to talk about our wonderful family. In your previous classes, like in your class 1 and 2, you all have seen the different types of family. Okay. Again, in this chapter, we are going to talk about our family. Okay. Let's see. The people who live with us in our house are our family members. They make up our family. Family members take care of each other, have fun together, love and respect each other. They also share household chorus. Children that have the same parents are called siblings. Students, हम लोग हमारी फैमिली में किस हम लोग हमारे घर में किसके साथ रहते हैं? हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. ठीक है. हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है. और सिबलिंग्स भी होते हैं. सिबलिंग्स कौन होते हैं? वो भाई बहन जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं. ठीक है. Okay, now types of families. Students, further in this entire chapter, we are going to see the types of family. Okay, as well as you all know what is the meaning of nuclear family and joint family. Remember small and big family. So let's see types of families. Families are of 3 types. So how many families we have? We have 3 types of family. First family name is nuclear family. Then comes joint family. Then comes single parent family. Okay, now let's see nuclear family. What is the meaning of nuclear family? A family that is small in which parents and children live together is called a nuclear family. So nuclear family students आपकी छोटी family होती है. इस family में आपके सिर्फ मम्मी पापा और आपके भाई बहन रहते हैं. That's it. Okay, simple. This is called as our nuclear family or small family. Nuclear family is a type of family where only our parents live with their children. Okay, so this type of family is called as nuclear family or small family. A small nuclear family has parents with 1 or 2 children. A big nuclear family has parents and more than 2 children. देखिए ये जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ये स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइडेड है. आगे चल के कैसे? जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है इसमें मम्मी पापा और सिर्फ 2 बच्चे रहते हैं या फिर 1 बच्चा. दैट्स इट. ठीक है. लेकिन जो आपके बिग न्यूक्लियर फैमिली होते हैं उसमें मम्मी पापा के साथ उनके 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे हैं जैसे 3-4 बच्चे हैं तो वो एक साथ रहते हैं. ठीक है. सो ये है आपका न्यूक्लियर फैमिली. समझ में आया न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फैमिली जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं. ये 2 पार्ट में आगे डिवाइड होता है, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है. बिग न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है जहां पे पेरेंट्स के साथ उनके 2 से ज्यादा बच्चे रहते हैं. ठीक है. और स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है पेरेंट्स के साथ सिर्फ 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा. ओके. So you can see this is the picture of a small nuclear family and this is the picture of big nuclear family. Okay. Now our second type of family is joint family. हमारी joint family है second type की. तो joint family देखिए क्या होती है? A family in which grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together is called a joint family. तो joint family क्या होती है स्टूडेंट्स? joint family big family होती है. ठीक है. तो joint family वो family होती है जहां पे आपके grandparents, uncle, aunt, उनके बच्चे यानी कि your cousins, your parents and your siblings आप सब एक साथ एक ही घर में रहते हो. So this type of family is called as our joint family. A big joint family has more than 1 pair of parents and their children living together. ठीक है. जो बिग जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होता है? आप उसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. जैसे कि आपके सिर्फ एक ही अंकल आंट नहीं होंगे, हो सकता है आपके और भी अंकल आंट आपके साथ रहते हो. ठीक है. चलिए. A small joint family has a set of grandparents, parents and their children living together. ठीक है. वहीं पर जो स्मॉल जॉइंट फैमिली होती है, स्मॉल जॉइंट फैमिली में सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स और आप लोग रहते हो. दैट्स इट. ठीक है. बिग जॉइंट फैमिली में क्या होता है? बिग जॉइंट फैमिली में आपके अंकल आंट वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, योर कजन्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सब लोग रहते हैं. ठीक है. So this is called as our joint family. Students, you can see it's a picture of a small joint family and it's a picture of big joint family. Okay. Now, given below are sets of siblings. Identify them and write their names.
चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देयर फील्ड ऑफ एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं फेमस सिबलिंग्स के, ये सब भाई बहन है एक दूसरे के, ठीक है। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को पहचानना है और आपको इनका नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो सिबलिंग जोड़ी है ये आपके सिंगर है, पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, ठीक है। आइए देखिए। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ये फेमस भाई की जोड़ी की, ठीक है, यानी कि ये दो भाई हैं। स्टूडेंट्स ये ना बिजनेसमैन है एक्चुअली। कौन है ये दोनों के दोनों बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन। ओके, इनमें ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। नाम क्या है इनका, जो छोटे हैं इनका नाम है अनिल अंबानी। क्या नाम है, अनिल अंबानी। नाउ द नेक्स्ट वन, ये बड़े हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, ठीक है, ओके। और ये दोनों भाई कौन है, बिजनेसमैन है। नाउ कम्स द टर्न ऑफ दिस टू सिबलिंग्स। ये दोनों कौन है, ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पॉलिटिशियंस हैं। कौन है ये है आपके पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस में ये बड़ी हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रियंका गांधी, ठीक है, प्रियंका गांधी। ना ये छोटे हैं, इनका नाम है राहुल गांधी। ओके, अब ये दोनों लोग कौन है, ये दोनों वर्ल्ड फेमस सिंगर हैं, ठीक है। कौन है ये दोनों की दोनों हमारी सिंगर्स हैं, ठीक है, जिनमें से इनकी डेथ हो चुकी है और ये उनकी छोटी सिस्टर हैं। तो ये जो बड़ी सिस्टर है इनका नाम है लता, ओके, और ये जो छोटी है इनका नाम है आशा, ठीक है, लता मंगेशकर और आशा मंगेशकर, ठीक है। ओके, इनका अब टाइटल चेंज हो गया है, ये है आशा भोसले, ठीक है। चलिए, सो ये है फेमस सिबलिंग्स की जोड़ी, ठीक है। सो आपने देखा इनके पेरेंट्स एक हैं, ओके, इसीलिए ये सिबलिंग्स हैं। नाउ सिंगल पेरेंट फैमिली। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में। तो सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, देखिए, सिंगल पेरेंट फैमिली, a single parent family is one in which the child or children does not or do not live with both their parents. This happens when parents are separated or one of the parents has died. Stress single parent family का मतलब होता है एक ऐसी फैमिली जहां पे बच्चे जो हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं, या तो वो मदर के साथ रहेंगे या तो वो फादर के साथ रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि वो दोनों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या फिर किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मम्मी की डेथ हो गई या पापा की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई है दोनों पेरेंट्स में से, तो इस टाइप की जो फैमिली होती है वो आपकी सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ आवर फैमिलीज, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक ट्री ग्रो होता है, तो जैसे ट्री ग्रो होता है उसके ब्रांचेस काफी सारे होते हैं, उसके ब्रांचेस काफी ज्यादा फैल जाते हैं, वो ट्री बड़ा होता चला जाता है। वैसे ही स्टूडेंट्स हमारा जो फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स रहते हैं उन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो शो करते हैं, ठीक है। A family tree shows the relationship between different members of a family. A simple family tree has 3 generations, ठीक है। So सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल ट्री की, ठीक है। तो एक सिंपल फैमिली ट्री, तो जो सिंपल फैमिली ट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 जनरेशंस को दिखाती है। तो 3 जनरेशंस का मतलब क्या होता है, देखिए, the grandparents are the first generation, the family tree starts with them। तो जो सिंपल फैमिली ट्री होती है इसमें 3 जनरेशंस होती हैं। 3 जनरेशंस का मतलब क्या है, आपके दादा और दादी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ये ट्री स्टार्ट होता है। इसके बाद इस ट्री में the parents, uncles and aunts from the second generation. So your grandparents are your first generation. अब इसके बाद आपके पेरेंट्स, अंकल्स और आंट्स ये आपके सेकेंड जनरेशन होते हैं, ठीक है। राइट अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्लीट, ओके। अब इसके बाद
इनके बाद किसका टर्न आएगा, आप लोगों का टर्न आएगा, ठीक है, आपका टर्न आएगा, आपके सिबलिंग्स का और आपके कजन्स का टर्न आएगा। तो इस तरीके से ये एक सिंगल फैमिली, ये एक तरीके से सिंपल फैमिली ट्री है जिसमें 3 जनरेशन आते हैं। ना चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट्स हमारे फैमिली में कभी कभी चेंजेस भी आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं देखिए, द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली में टेक प्लेस ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से आते हैं। जैसे कि क्या रीजन हो सकता है कि फैमिली में चेंज आया है, तो सबसे पहला है मैरिज, फिर डेथ, बर्थ ऑफ अ बेबी, मूविंग अवे ऑफ सम मेंबर्स, ठीक है, शादी करके जब नए लोग घर पे आते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली चेंज हुआ, ठीक है, या फिर कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ, फैमिली चेंज हुआ, ठीक है। साथ ही साथ कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं घर के जो घर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, whenever a change takes place in a family, it affects the lives of all members of the family. फैमिली में जब भी कोई चेंजेस आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, डेथ, बर्थ ऑफ अ बेबी और मूविंग ऑफ सम फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ये पूरे फैमिली को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ लुक्स एंड बिहेवियर, स्टूडेंट्स हम लोग फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन लुक एंड बिहेव इन अ सिमिलर वे, दे शो सम सिमिलैरिटीज इन द वे ऑफ टॉकिंग एंड वॉकिंग। हम सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली क्या है, सेम है, ठीक है, चाहे वो आपके अंकल आंट के बच्चे हो चाहे आप लोग हो, आप लोग को सिमिलैरिटी एक दूसरे से शेयर करोगे। आप लोग को देख के कोई भी कह देगा कि यू बिलोंग टू अ सेम फैमिली, ठीक है। तो देखो कैसे आप सिमिलैरिटी शो कर सकते हो, जैसे कि देखिए, some members of a family resemble each other. A child may have black eyes like his her father or straight hair like his her mother, ठीक है, कुछ फैमिली मेंबर्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी ब्लैक आईज हैं तो हो सकता है आपके मम्मी पापा में से किसी की डीप ब्लैक आईज हो, फिर आपके स्ट्रेट अगर हेयर्स हैं तो हो सकता है कि पापा या आपकी मम्मी किसी का एक स्ट्रेट हेयर हो, ठीक है। ओके, इस तरीके से देखिए, आगे देखिए, we inherit looks from our parents and grandparents. हमारा जो लुक होता है ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। आगे चल के हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। टू बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड ट्विंस। आप लोगों ने ट्विंस का नाम सुना है? ट्विंस कौन होते हैं? ट्विंस दो बेबी होते हैं, ठीक है, दो बेबीज होते हैं जो एक ही पेरेंट से पैदा होते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। ट्विंस कौन होते हैं? ट्विंस आर द टू बेबीज हु बोर्न फ्रॉम सेम पेरेंट्स एट अ सेम टाइम, ठीक है। ट्विंस आर ऑफ टू काइंड्स, तो ट्विंस स्टूडेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। ट्विंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस, तो देखिए, ट्विंस दैट लुक जस्ट लाइक ईच अदर। सो पहले होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब ये जो ट्विंस होते हैं ना ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। उनका आई कलर से लेके हेड कलर से लेके सब कुछ एक जैसा होगा, ठीक है। फिर फ्रेटर्नल ट्विंस, ट्विंस दैट डू नॉट लुक लाइक ईच अदर, और फिर दूसरे फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, मतलब वो ट्विंस तो होंगे लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ट्विंस आपके कितने टाइप के हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले है आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके फ्रेटर्नल ट्विंस, ये वो ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, अलग दिखते हैं, ठीक है। चलिए, सो यू कैन सी हियर, ये आइडेंटिकल ट्विंस है आपके और ये आपके फ्रेटर्नल ट्विंस है, ठीक है। नाउ फन विद फैमिली, फैमिली की बात हो रही है, फन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, we like to spend time with our family. We learn many things from our family. We learn good manners and habits from our elders. हमें हमारी फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, हम हमारी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, हम गुड मैनर्स को अपने फैमिली मेंबर्स से ही सीखते हैं, ठीक है। We do many things together. हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं। We celebrate festivals and special occasions with our family. हम लोग क्या करते हैं? हम फेस्टिवल्स हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, पूरी फैमिली मेंबर एक साथ सेलिब्रेट करती है, ठीक है। We go for picnics also. हम पिकनिक पे भी जाते हैं। It is great fun spending time with family. और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है सबको। Okay, so students, now come with me and let's see the review of the chapter. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? देखिए, The people who live with us in our house are our family members. वो लोग जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, कौन है वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स शुड केयर, लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एक चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर अकर्स ड्यू टू डिफरेंट रीजन। फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन है?
मैरिज, डेथ, बर्थ ऑफ अ बेबी एक्सेट्रा। ठीक है, पर देखिए फैमिली मेंबर्स ऑफन लुक एंड बिहेव इन अ सिमिलर वे। फैमिली मेंबर्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और वो एक जैसा बिहेव भी करते हैं। ठीक है, ट्विंस कैन बी आइडेंटिकल और फ्रिटर्नल। ट्विंस आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, फ्रिटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे और फ्रिटर्नल मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग। ठीक है, ओके। So students, this is all about this chapter. Here our chapter number 1 ends. Okay, in this chapter we all have discussed the so many types of family. Okay, characteristics of family. Okay, how each and every family member love each other. Okay, so ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं. Students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of EVS. Till then, take very good care of yourself. Bye.